مزمل سہروردی صاحب اور آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں مونا عالم صاحب، آج آپ کی میرے دائیں جانب موجود ہیں منصور علی خان صاحب، ڈاکٹر ماجد ذوالفقار اور رائے ثاقب کھرل. بہت شکریہ جس آپ نے جوائن کیا. ہر کوئی بڑا ایکسائٹیڈ ہے، ظاہر ہے کل الیکشن ہو رہا ہے اور بڑے انتظار کے بعد بڑی غیر یقینی بھی تھی الیکشن کو لے کر. آسما شاہی صاحب، وہ دن آ گیا ہے کہ جس کے حوالے سے بہت زیادہ گم و گو اور کا شکار تھا ہر کوئی، پتہ نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوگا. آج ہم کم از کم پورے وثوق پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کل انشاءاللہ الیکشن ہو رہا ہے. بالکل، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کو جاتا ہے جنہوں نے انشور کیا اس چیز کو. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے کہ جی اب انتخابات گئے اور اب تب گئے، لیکن سکسیسفلی آج چاند رات ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز کی چاند رات ہے. میں نے دیکھا ہے ماریا نے اور مونا نے تو بڑی تیاری کی ہے، میں نے بھی تھوڑی سی کی ہے، میں نے بھی تھوڑی سی ہم دونوں نے کی ہے کافی. بلیک اور آپ ہاں دیکھیں نا ادھر بھی بلیک اور گرے. مردانہ تعریف نہ کرنے پر میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروں. لیکن آج افسوسناک ایک خبر ہے جس سے ہم ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. ان تمام خاندانوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور تعزیت جو کہ الیکشن کی اس مہم کے دوران قلعہ سیف اللہ، پشین اور چمن میں اٹیکس میں مارے گئے ہیں. 2 درجن سے زائد کے قریب اب تک اطلاعات ہیں، اور یہ پشتون بیلٹ ہے جہاں پہ یہ دھماکے ہوئے ہیں. ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خودکش حملوں کی اطلاع ہے یہ. تاحال اب اس کی کنفرمیشن مزید جب ہوگی تو ہم مزید اپڈیٹ کریں گے، جو کہ بہت افسوسناک ہے. اور دعا ہے کہ کل جو ہے وہ الیکشن کی جتنی بھی جو کاروائی ہے، پروسیڈنگز ہیں، وہ خیر خیریت سے ہوں. البتہ اب ایک ہائی الرٹ پہ ہے پاکستان اس وقت اگر آپ دیکھیں، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے. خان صاحب کا یہ جملہ میں خیال ہے یہ ضرور کوٹ ہونا چاہیے کہ گھبرانا نہیں ہے، ووٹ دینا ہے اور ڈرنا نہیں ہے. سمر میں خیال ہے یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل جی صاحب کوئی کامنٹ. پھر نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ چکے ہیں، میں پھر ان کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. ایک کامنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس الیکشن کے حوالے سے ابہام رہا ہوگا یا نہیں ہوگا، بالآخر وہ دن آ گیا ہے. اور جو بہت سے لوگ، میرا خیال ہے کافی لوگ شرطیں بھی ہارے ہیں جنہوں نے یہ لگائی ہوئی تھی کہ نہیں ہوں گے. کم لوگ جو کہہ رہے ہوں گے، انتخابات ہونا جو ہے، اور جو کہہ رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہوں گے. یعنی کہ ایک حلقے کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور حلقہ ہے NA 207 بنظیر آباد. اس حلقے میں آصف علی زرداری کا مقابلہ ہے شیر رند بلوچ کے ساتھ. یہ آزاد ہیں، پاکستان تحریک انصاف بیک کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ حلقہ عموماً پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. اور اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو 2018 کے انتخابات میں یہ حلقہ تھا NA 213، اور اس میں کامیاب امیدوار تھے آصف علی زرداری جنہوں نے 1,01,370 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ناکام امیدوار تھے سردار شیر محمد رند بلوچ ہی یہاں سے ناکام ہوتے. یہ GDA کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 54,000 ووٹ حاصل کیے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب. نوید قمر صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں ٹرانسمیشن میں. سر یہ بتائیں کہ اس مرتبہ کیا چانسز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ سے، آپ کی کیا تیاری ہے، پرٹیکولرلی کتنی سیٹیں جنرل سیٹس جو ہیں وہ آپ حاصل کر لیں گے سندھ سے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ سندھ کی بات کریں تو تھوڑا سا اگر سیپریٹلی انٹیریئر سندھ کریں تو انٹیریئر سے تقریباً کوئی بھی ایسی سیٹ نہیں ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوز کرے گی. 2 یا 3 سیٹس ایسی ہیں جہاں پہ مقابلہ ہوگا، باقی ون سائیڈڈ کانٹیسٹ ہیں. مقابلے والی مطلب اگر سانگڑ کی سیٹ ہے، کیونکہ وہ سیٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں وہاں، تو وہ ہو سکتا ہے بدین جو کہ لاسٹ ٹائم سے تو PPP جیتی تھی، لیکن وہ جس طرح سے مینیجنگ چیزیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا وہاں سے آئی تھی. باقی تو اب دیکھتے ہیں، بائی اینڈ لارج اس کے علاوہ میں کوئی خاص کنٹیسٹ نہیں دیکھ رہا، انکلوڈنگ یہاں پہ انشاءاللہ میری سیٹ پہ. نوید قمر صاحب، ایک سوال بڑا کل سے ابھر رہا ہے، اور وہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ کچھ کریں گے تو پھر آپ بھول جائیں گے کہ بانی تحریک انصاف جو کہتے تھے یا کرتے تھے اس کو آپ بھول جائیں گے. اس کو دھمکی سمجھا جائے اور پھر اس کو کس کانٹیکس میں لیا جائے؟ کیا آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کے جو نتائج ہیں آپ کی جماعت کے وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، خاص کر کے کراچی میں، یا یہ صرف ایک ہتھ کنڈا ہے کہ آپ دھمکی دے دیں اور اداروں کو خبردار کر دیں؟ دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جینوئنلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو.
अनफॉर्चुनेटली ये वाला राउंड भी जो इलेक्शंस का है वो इतना कोई खास फ्री एंड फेयर नहीं रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी पोजीशंस जो हैं वो ज़रूर क्लियर करते आए हैं। पंजाब में आपने देखा है कि इवन बिलावल साहब के अपने हल्के में भी किस हद तक गुंडागर्दी वगैरह की गई है विद इनफ सपोर्ट जो कि आपको स्टेट मशीनरी से मिलती है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इलेक्शन वो हो कि जो जेन्युइनली रिप्रेजेंट करती हो वोटर की मर्जी को, और इस लिहाज से अलर्ट कर देना तो बहुत ही जरूरी होता है। ये आप पहले भी जो है वो जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था उस वक्त भी आपका ये खदशा था, उस वक्त भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो तकाजा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी उनको ज़्यादा जो है वो सपोर्ट हासिल है और हमें उस तरह नहीं, लाडला नंबर 2 जो है वो या ओरिजिनल लाडला जो है वो आ गया। हैविंग सेड दैट, अगर जिस तरह आप ये बात अभी कर रहे हैं, जो आपके खदशात इस वक्त मौजूद हैं, अगर जब हतमी मरला आता है हुकूमत बनाने का, हुकूमत साजी का, जिस तरह हंग पार्लियामेंट का कहा जा रहा है, तो क्या आप बनाएंगे, उनके साथ कोalition में जाएंगे? अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीती है, PMLN जीती है, तो क्या आप कोalition का सोच रहे हैं? देखिए, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में क्या होता है, कौन कितनी सीटें लेके आता है, ये सारी चीजें उसके बाद के फैसले की हैं। जाहिर है कि पार्टी लीडरशिप भी और हमारी जो भी सेंट्रल कमेटी वगैरह है वो बैठेंगे कि उस वक्त के हालात को देख के ही फाइनल फैसला होगा। बिलावल साहब तो कह चुके हैं कि वो दोबारा से वार्ड मिनिस्टर होने को तैयार नहीं है अगर मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे। बट ये एक फीलिंग है विद इन द पार्टी, लेकिन सही माना में ये जरदारी साहब का भी फैसला है या जरदारी साहब भी ये सोचते हैं, सिर्फ बिलावल साहब ये सोचते हैं? जरदारी साहब का, बिलावल साहब का पार्टी का एक ही फैसला होता है, इस पे कोई वो इबाम नहीं है। सवाल जो जवाब मैं दे रहा हूँ काइंडली उस पे जरा फोकस करें कि मैं कह रहा हूँ कि ये क्योंकि कोई प्रीमेच्योरली कोई भी फैसला नहीं होता इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक। इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं, किसकी कितनी सीटें होती हैं, पार्लियामेंट में क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं ना कि कौन हुकूमत बनाएगा और कौन जो है वो ऑपोजिशन में बैठेगा। नवीद कमर साहब, मुजम्मिल सुरवर्दी बोल रहा हूँ। आपने अभी शुरू में कहा कि सिंध में जो रूरल सिंध है 2-3 सीटों के अलावा तो कॉन्टेस्ट ही नहीं है, वन साइडेड आपको इलेक्शन नजर आ रहा है और आपको पीपल्स पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री नजर आ रही है, अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर समझने की बात है कि अगर हम 2018 या 13 के नताइज को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी को असेस करें कि उसकी, अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग बेस 100% जीत रहे हैं तो धांधली कहाँ हो रही है? देखिए, हम ये तो पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में जो है वो कंटेस्ट कर रही है। मैंने जो एग्जांपल दिया वो पर्टिकुलर लाहौर का 1 to 7 का दिया। उस लिहाज से हमें मतलब ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम वहाँ इनरोड्स ना हो, वो विच इज फ्रेंकली नॉट फेयर। हर एक को एक चांस। पिछले 4 इलेक्शंस में से आप एक भी इलेक्शन 1 to 7 उस हल्के में नहीं जीते हैं। नहीं, 98 से शुरू कर लें, 97 से, तो आप एक भी इलेक्शन उस हल्के में नहीं जीते हैं। क्लेम क्या है वहाँ? मेरे भाई सवाल ये नहीं क्या हो, अगर सिर्फ हमने माजी के डेटाबेस से जाके जो है वो रिजल्ट छाप देने तो फिर तो आपकी बात शायद दुरुस्त हो, लेकिन जब आप कैंपेन में जाते हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप एक कम से कम एक फाइटिंग चांस जरूर रखते हैं किसी भी सीट को जीतने का। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट्स जो हैं वो पहले से ही पता है, मैं सिर्फ इतने हद तक कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो मुश्किलात हुई, अब हमारे ऑफिसेज पे अटैक्स होते हैं, हमारा इक्विपमेंट जाके तोड़ दिया जाता है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं अपोजिंग कैंडिडेट की तरफ से। तो ये तो कहीं भी हो, अगर हमारी अपने हलकों में भी हो तो कोई भी नहीं कहेगा कि। ये बताइएगा कि आप लोग तो लेवल प्लेइंग फील्ड की कंप्लेंट करते आए हैं, बाकी सारी सियासी जमातों को भी इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है? नहीं, बाकी जमात से अगर आपका मतलब पीटीआई है तो फ्रैंकली नहीं मिली। मतलब ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो इसमें मेरा या आपका ओपिनियन काउंट करता है। क्वाइट ऑब्वियसली अब उसके बावजूद कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप इसको कहेंगे, ये तो
इलेक्शन डे गुजर जाने के बाद ही हम कह सकते हैं। लेकिन आई होप कि जितनी कुछ भी हुआ है मैनेजमेंट इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे पे कम से कम एक ओपननेस होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त जो फील्ड में हैं, उनको जो पब्लिक बाय एंड लार्ज वोट देना चाहे उनको वोट देने की इजाजत होनी चाहिए। नवीद साहब, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। आपने ये जो बिलावल साहब के हवाले से कहा कि NA 127 के अंदर जो है ये मसाइल आए और उनको वहां पे प्रॉब्लम है, इज इट फेयर कि एक्चुअली एक हल्के में, एंड आई एम श्योर आप सिर्फ एक हल्का कोट कर रहे हैं, एक हल्के की बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम के ऊपर इस तरह उंगली उठा देना, क्या ये जायज है? और दूसरी बात ये कि आप भी जानते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मसला हुआ, आप लोगों ने तो वहां पे सुलह कर ली है, एक दूसरे के खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स भी वापस ले ली हैं। आपके चेयरमैन की इस स्टेटमेंट की वजह से पूरे इलेक्शन सिस्टम के ऊपर जो है उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। इज इट फेयर टू एक्चुअली कमेंट लाइक दैट? नहीं, तो फ्रैंकली जो कमेंट है इट इज टू बी सीन विद इन द कॉन्टेक्स्ट जिसमें किया गया है ना। इसको ना मैंने एक्सट्रापोलेट किया, ना मैंने ये कहा कि उस एक इंसिडेंट की वजह से या वहाँ की जो भी राइवलरीज हो रही हैं लोकल बेसिस पे, वो नेसेसरीली रिफ्लेक्ट करती है कि पूरे मुल्क में ऐसे हो रहा है। तो take it for what I have said, not you're only concerned about one constituency. You're only concerned about one constituency. एक हल्के से मसला है। देखिए, वो वन कंस्टिट्यूएंसी इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए कि ज़ाहिर पार्टी लीडरशिप वहाँ एक नया ग्राउंड ब्रेक करने जा रही है, तो उस लिहाज से इट्स इम्पोर्टेंट। अदर देन दैट, एज आई सेड, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे जो रूरल सिंध है उसमें तकरीबन हम स्वीप ही कर रहे हैं और वन साइडेड कंटेस्ट है मोस्टली। मगर नवीद कमर साहब, एक कुछ अंदाजे और तखमीने सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 34 से 35 या 33 से 35 सीटें सिंध से जो है वो पीपल्स पार्टी जीतेगी नेशनल असेंबली की। तो क्या आपको लगता है कि ये भी इन्फ्लुएंस होने की कोशिश है, या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटल 61 सीटें हैं सूबा सिंध की, तो इतनी ही लेगी क्या? ये तो जो बैठ के तज्जिए करते हैं या जो को मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके नंबर्स हो सकते हैं। पहले से उनको कैसे पता? अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो नंबर सामने आ जाएंगे ना। जो हमारे पास लास्ट जो असेंबली में आप अपनी कैलकुलेशन बता दें, कम कहने की बात सर, आप अपनी कैलकुलेशन बता दें कि कितनी आ सकती हैं। नहीं, मैं नंबर्स पे नहीं स्पेकुलेट इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने आपको जो अपनी असेसमेंट दी है आउटसाइड ऑफ कराची, वो आपको और कराची की कंपेयर टू लास्ट टाइम। नवीद कमर साहब, कराची में क्या कितनी सीटें आप ले रहे हैं? कराची में बिकॉज जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सीट्स हैं, वी आर ट्राइंग कि उनको हम इंक्रीज करें। जाहिर है कि MQM की तरफ से भी ये एफर्ट होगा। PTI ने जो लास्ट टाइम ली थी, फ्रेंकली उसमें बहुत ज्यादा आंसर था फैजियाब होने का, तो अब शायद वो PTI को उस किस्म की सपोर्ट बेस तो ना मिले ना, तो वी विल सी चेंजेस ऑन दैट लैंडस्केप। नवीद साहब, इसमें अगर है हमारे पास वक्त की गुंजाइश, ये पूछना आपसे जरूरी है कि जो दूसरी तरफ आपकी तरफ इल्जाम लग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग पैसा चला रहे हैं और ब्राइब कर रहे हैं लोगों को पंजाब में, वेराज आप लोगों की ये इस पे कंप्लेंट है कि आपके जो लोग हैं उनको फोर्स करके तब्दील करवाई जा रही हैं वफादारियां और PMLN की तरफ भेजा जा रहा है। ये फरमाइएगा, ये जो इंडिपेंडेंस वाला मामला है उस पर भी हम सिमिलर आवाजें उठती हुई आपके तरफ से देखते हैं, आपके खिलाफ इनफैक्ट देखते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस को भी आप अपनी तरफ रागिब करना चाह रहे हैं। तो वो PTI के लोग ये कहते हैं कि जब क्रैकडाउन होता था, जैसे मई में भी उनका एक आई रिकॉल उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला था 2022 में, तो उस वक्त भी वो कहते हैं जब क्रैकडाउन होता था तो कराची में भी होता था और पीपल्स पार्टी उसमें पूरा अपना हिस्सा डालते थे। अब आप अचानक से अगर सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए दिखा रहे हैं और अगर इंडिपेंडेंट्स आपकी तरफ आते हैं तो पीपल आर सेइंग दैट विल बी ओनली बिकॉज यू विल बी ऑफरिंग देम समथिंग इन रिटर्न। देखिए फिर ये प्रीमेच्योर स्पेकुलेशन कर देना, अभी इलेक्शन हुए नहीं, अभी ये पता ही नहीं है कौन आएगा जीत के और कौन इंडिपेंडेंस को तो आप बुला रहे हैं ना अपनी तरफ, इसलिए आपसे सवाल जरूरी है। कहते हैं कि हम अपने नंबर्स लाएंगे और जो हमारे साथ ज्वाइन हो सके इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट्स
وہ हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारा कोई पीटीआई के साथ डील हो रहा है या उनके साथ डील हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कंवर साहब, आपने हमें ट्रांसमिशन में। नवीद कंवर साहब बड़े होपफुल हैं कि हम जो है सिंध से मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट जीतेंगे। और अच्छा, ये NA-207 का मैं जरा सबीन फारूक ने इस पे डिटेल्स इकट्ठी की हैं डिजिटल के डेस्क से, उससे जानते हैं। ओवर टू सबीन।